ابھی ابھی ہم ویٹ کریں گے، میں اس کو ہم لائیو کرتے ہیں فیس بک پہ، تو پھر اس کے بعد اوکے چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. اور کون کون ورشپ کرے گا مجھے پہلے بتا دیں. جنیکا ہماری تو صرف جنیکا کرے گی، پھر بلکہ پوری فیملی کرے گی. چلیں پھر ہم مسکان سے دعا کو آئیے گا، مسکان سے بڑی بیٹی سے. چلیں. مسیح خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو. خداوند آپ سب کو فضل بخشے اور ہمیشہ اس کا فضل ہم سب پر اسی طرح بنا رہے، وہ ہم پر رحم اپنا کرتا رہے، کیونکہ وہ شفقت بیگنی خدا ہے، وہ کہے کرنے میں دھیما خدا ہے، اور اس کی شفقت ابدی. ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہوئے ہم اس کی بارگاہوں میں داخل ہوتے ہیں. ہم اس کے نام کو عزت و جلال دیتے ہیں، کیونکہ وہی قدرت، حشمت اور بزرگی کے لائق ہے. ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ اس نے ہم سب کو اکٹھا کیا ہے کہ ہم سب اس کی حضوری میں کھڑے ہوں، ہم اس کی حضوری میں ٹھہریں، ہم اس کے نام کو عزت و جلال دے سکیں، اور ہم اس ساری میٹنگ کو، سارے ماحول کو خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے ہاتھ میں دیتے ہیں، کیونکہ وہی قدرت، حشمت اور بزرگی کے لائق ہے، اور وہی ہمیں سنبھالنے والا خدا ہے، وہی ہمیں قوت دیتا ہے، دلیری اور جرأت دیتا ہے. اور ہم ابھی سے سارے کنٹرول کو خدا باپ کے ہاتھوں میں دیتے ہیں، تاکہ ہماری ساری میٹنگ، ساری پرستش اور کلام کا حصہ اور سب کچھ، اور جو بھی مناجات اور دعائیں، ریکویسٹ جو بھی پیش کی جائیں، وہ خداوند کے حضوری میں بخور کی مانند پہنچیں. اور لشکروں کے خداوند جتنے بھی پارٹیسپینٹس جو ہمیں جوائن کر چکے ہیں خداوند، ہم ان کے لیے تیری برکت کو چاہتے ہیں، تیرے رحم کو چاہتے ہیں خداوند، اور وہاں پر تیری گہری حضوری کو چاہتے ہیں جہاں پر بھی وہ موجود ہیں خداوند. اور خداوند ہمیں اسی طرح سے روح میں باندھے رکھنا خداوند، ہم ایک دوسرے کے ساتھ روح میں بندے رہیں خداوند، اور لشکروں کے خداوند تیری خدمت کر سکیں خداوند. تو نے ہمیں جوڑا ہے، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں خداوند، اور ہم ساری عزت و سارا جلال خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کو دیتے ہیں. تو میں بھائی عرفان ہمارے ساتھ ہیں، میں ان سے کہوں گی کہ وہ اوپننگ پریئر میں ہماری دعا کریں، رہنمائی کریں، وہ دعا کریں. آسمانی پتا یسوع میں ہمارے باپ، تیری شکر گزاری کرتے خداوند، تو جو بھلا مبارک ہے، کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے. اور اے باپ، ہم اس بات کے لیے تیری شکر گزاری کرتے کہ بالخصوص خداوند تو نے ہمیں زندوں کی زمین پہ زندہ رکھا، ان چلتی سانسوں کے لیے، اس بدن میں دوڑتے خون کے لیے. اے باپ، میں تیری شکر گزاری کرتا، اور بالخصوص خداوند اس بات کے لیے کہ تو نے ایک مرتبہ پھر خداوند ہمیں جمع ہونے کا ایک خوبصورت موقع فراہم کیا. تیرے کلام پاک میں لکھا ہے اور بیٹیاں جب تیری پرستش، تیری حمد و ثنا کے لیے، تیرے کلام کی سندر اور مہیب باتوں کے لیے جمع ہے، تو اے باپ سارے ماحول کو تیرے سپرد کرتا، اور سارے ماحول پر اے باپ تیرا قوی ہاتھ مانگتا. اے باپ، اپنا قوی ہاتھ بڑھا کر خداوند ایک ایک جان کو چھوئے گا جو اس میٹنگ میں شامل ہیں. بالخصوص خداوند تیرے بیٹے اور بیٹیاں جب تیری مدد سرائی کریں، تیری حمد کریں، تیری ثنا کریں، تیری جاجت کار کریں، تو اے باپ تو ان کے گلوں کو، ان کے لبوں کو، ان کے خداوند دلوں کو خاص طور پہ چھونا، تاکہ خداوند یہ روح اور سچائی سے تیری پرستش کر سکیں. اور اے باپ تو ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے جو تیری پرستش روح اور سچائی سے کریں. اور خداوند ہم سب کا مل بیٹھنا، تیری پرستش کرنا، تیری بندگی کرنا، اور بالخصوص خداوند سارا آنر اور سارا عزت خداوند تیرے محیب اور قادر نام کو دینا. آسمانی باپ، تیرے حضور باخور کی مانند پہنچے، اور جتنے بھی خداوند اس میٹنگ کے دوران اور اس سے پہلے جو ہمیں دعائیاں اور درخواستیں رسیو ہوئی ہیں، جب ہم ان کے لیے دعا کریں تو اے باپ میں ایمان رکھتا ہوں کہ بالخصوص آج کے کلام کے نازل ہونے کے وسیلہ سے، جس طرح آپ کے کلام پاک میں لکھا ہے کہ تو اپنا کلام نازل فرما کر شفا کو جاری کرتا ہے، اے باپ ان تمام بیماریوں کی، بالخصوص جن کی دعائیاں درخواستیں ہیں، ان کی بیماریاں ان کے معجزوں میں تبدیل ہو جائیں. اور اے باپ اب تو میٹنگ کے شروع سے
आखिर तक हम सबको संभाले रखना। और खुदा पाक रू तू जो हमारी शिफायत है बढ़ बढ़ कर करता है, मैं तेरी प्रोटेक्शन को अभी से मांगता हूँ। तू संभाले रखना और एक एक जान की सहायता और रहनुमाई करना। और बिलखसूस अपनी बहन को तेरे स्पुट करता, लफ्जों की तरतीब और तफसीर देना। बिलखसूस तेरे उस लामत को जिसने तेरे कलाम का बयान करना है उसको भी तेरे हवाले करता, उसको भी लफ्जों की तरतीब और तफसीर देना। और जब तेरे कलाम का बयान करे तो तेरा रूह उसमें से होकर बोले। और आज हम सबका यहाँ मिल बैठना ओ खुदावंद तुझे पसंद आए। और खुदावंद हम सब जब तेरी प्रस्तिश तेरी बंदगी करें, तेरा पाक रूह हमारी सहायता और रहनुमाई करे। यीशु मसीह के नाम से ये मांगते हैं, आमीन। आमीन। खुदा की शुक्रगुजारी हो। हमारे साथ भाई रशीद और उनकी फैमिली है, यूनिका है। तो हम बेटी यूनिका से कहेंगे कि वो खुदा उनके वर्शिप में हमें लीड करे। अपना माइक खोलो। रशीद भाई आपका माइक ऑन नहीं है। और अंदर जी हो गया। हाँ जी रशीद जी आपका माइक बंद है, उसे ऑन करें। नीचे टेक्स्ट कर दे, शायद उनको बात सुन जाए।
हालेलुया, खुदा उनकी तारीफ हो। हम भाई से कहेंगे कि वो वर्शिप को जारी रखें और उसके बाद मैं रवि है हमारे साथ, मैं उनसे कहूंगी कि वो वर्शिप करेंगे। भाई वर्शिप आप को जारी रखें। जी ਲੋਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਦਾ ਲੋਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਦਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਲਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਦਾ आमीन, हालेलुया हालेलुया, खुदा उनकी तारीफ हो। आज मेरे ज़हन में एक गीत आ रहा है तो मैं उसको थोड़ा सा गाना चाहती हूँ, तो फिर उसके बाद मैं रवि से कहूंगी कि वो खुदा उनकी वर्शिप करे। जी जी उचियां शाना वाल्या शाफी नजरां तेनू चढ़ावां उचियां शाना वाल्या शाफी नजरां तेनू चढ़ावां तेरे नाम दे शाफी लोकां नूं सुनावां यशाना वाले साहब तेरे नाम दे शाफी लोकां नूं सुनावां
शानावान नसरातेनु हालेलुया आमीन। मैं अब भाई रवि से कहूंगी कि वो खुदा के वर्शिप में हमें रहनुमाई करें। जी 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 तो मेरी तरफ से जय मसीह की। प्रभु का बहुत धन्यवाद और धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने मेरी वाइफ को चंगाई दी है और पहले से बहुत उनकी तबीयत ठीक है और आज मेरे साथ मीटिंग में भी बैठी है, मुझे बहुत खुशी है। सो आप सबने देर दुआ की, सो इसके लिए मैं आपका दिल की गहराइयों से थैंक यू वेरी मच करता हूँ। और आज मेरी वाइफ वर्शिप करेंगी, सो इसलिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज मेरी वाइफ को दोबारा प्रभु ने आप सबसे जुड़ने का और वर्शिप करने का मौका दिया। आमीन हालेलुया, खुदा उनकी तारीफ हो। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की। जय मसीह की। हाँ जी, सो आइए प्रभु की महिमा के लिए हम मसीह भजन गाएंगे। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। मैंने जो भी मांगा तूने मुझको दिया, मैंने जो भी मांगा तूने मुझको दिया। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। ना आसमां मांगा हमने और ना जमीन मांगी हमने, ना चांद सितारे मांगे थे और ना हवा मांगी हमने। बिना मांगे ही तूने सब कुछ दिया, बिना मांगे ही तूने सब कुछ दिया। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। एक फूल खिला है गुलशन में, एक आस मदी है जीवन में। तेरे आने से यीशु आबाद हुआ है आंगन ये। तू नहीं था जीवन में तो कुछ भी ना था, तू नहीं था जीवन में तो कुछ भी ना था। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। मैंने सदा तेरा नाम लिया, मैंने सदा तेरा नाम लिया। हालेलुया। हालेलुया, खुदा उनकी तारीफ हो। हालेलुया हालेलुया। अगर आप वर्शिप करना चाहते हैं तो आप जारी रखें, उसके बाद फ्रोबल और मारिया हमारे साथ हैं, वो वर्शिप करेंगे। जी 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 सो प्रभु का बहुत धन्यवाद है। और आज मैं एक सॉन्ग गाऊंगा प्रभु के लिए जो प्रभु ने मुझसे किया है, सो मेरा खुद का ही लिखा हुआ है। तेरा प्यार ही है यीशु जी जो गल नड़ लाया ए, तेरा प्यार ही है यीशु जी जो गल नड़ लाया ए। मैं पापी सा गुनाहगार सा, पापी सा गुनाहगार सा, तू कोल बुलाया ए। तेरा प्यार ही है यीशु जी जो गल नड़ लाया ए, तेरा प्यार ही है यीशु जी जो गल नड़ लाया ए। सब तक दे अब गुना मेरे कुछ अपने दोष लगांदे सी, बुरा तक के बुरा कहंदे सी ते मार मकाउणा चाहुंदे सी। सब तक दे अब गुना मेरे
ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕੇ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮਾਰ ਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ, ਮਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ, ਤੂੰ ਆਣ ਬਚਾਇਆ ਏ। ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਹੈ ਏ ਯਸੂ ਜੀ ਜੋ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਏ। ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਹੈ ਏ ਯਸੂ ਜੀ ਜੋ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਏ। ਨਿਸਾ ਰੇ ਨਿਸਾ ਨੀ ਨਿਸਾ ਰੇ ਨਿਸਾ, ਨਿਸਾ ਰੇ ਨਿਸਾ ਨੀ ਨਿਸਾ ਰੇ ਨਿਸਾ, ਨਿਸਾ ਰੇ ਨਿਸਾ ਨੀ ਨਿਸਾ ਰੇ ਨਿਸਾ, ਨਿਸਾ ਰੇ ਨਿਸਾ ਨੀ ਨਿਸਾ। उनका मेरा ख्याल है कि वो आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं। ਦਿਲ ਗਮ ਚ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਅੰਜੂਆਂ ਨਾਲੇ ਅੱਖੀਆਂ ਲੱਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਝੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਦਾ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਦਿਲ ਗਮ ਚ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਅੰਜੂਆਂ ਨਾਲੇ ਅੱਖੀਆਂ ਲੱਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਝੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਦਾ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜੱਕੀ ਵਾਂਗੂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ, ਜੱਕੀ ਵਾਂਗੂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਏ। ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਹੈ ਏ ਯਸੂ ਜੀ ਜੋ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਏ। ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਹੈ ਏ ਯਸੂ ਜੀ ਜੋ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਏ। ਸਭੀ ਬਿਲਾਸਾ ਮੁੱਕ ਗਏ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਬਸ ਤੂੰ ਯਸੂ ਤਾਂ ਬਦਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ। ਸਭੀ ਬਿਲਾਸਾ ਮੁੱਕ ਗਈ ਏ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਬਸ ਤੂੰ ਯਸੂ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ ਬਦਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਯਸੂ। ਰਵੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਯਸੂ ਜੀ, ਰਵੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਯਸੂ ਜੀ ਤੂੰ ਫੇਰਾ ਪਾਇਆ ਏ। ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਹੈ ਯਸੂ ਜੋ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਏ। ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਹੈ ਯਸੂ ਜੀ ਜੋ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਏ। ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਸਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸਾਂ, ਪਾਪੀ ਸਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸਾਂ ਤੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਏ। ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਹੈ ਯਸੂ ਜੀ ਜੋ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਏ। ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਹੈ ਯਸੂ ਜੀ ਜੋ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਏ। ਹਾਂ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਏ, ਜੋ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਏ। हालेलुया। हालेलुया, खुदा उनकी शुक्रगुजारी हो। हमारे साथ प्रॉबल और मारिया थे, वो ऑफलाइन हो गए। अब मैं सिस्टर मार्गरेट से कहूंगी कि वो वर्शिप करना चाहती हैं तो वो वर्शिप करें, फिर उसके बाद हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। खुदा में आप सबकी सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, जिसको तूने बनाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, जिसको तूने बनाया है। इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए बनाया है। दुनिया की शक्ति से निकाल कर इसे पाक को साफ कर दे। गंदगी गुनाहों की तू धो दे, अपने खून से जो बहाया है। दिल ले ले मेरा प्यारे यीशु, जिसको तूने बनाया है। बहुत साल में रहा तुझसे दूर, लापरवाही ने रखा दूर। तेरे रहम और फजल और प्यार ने तेरा दर मुझे दिखाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, जिसको तूने बनाया है।
आमीन हालेलुया। हालेलुया, आमीन, आमीन। हमारे साथ मारिया फ्रोबल है, मैं उनसे कहूंगी कि वर्शिप में हमारी रहनुमाई करें। हालेलुया। मसीह के जलाली और फजल नाम में आप सबकी शांति हो। आपकी भी सलामती हो। हम खुदा की वर्शिप करेंगे। हालेलुया। हमेशा तक रहेगा तख्त तेरा खुदावंद तू, अबद तक बादशाह है। अदालत के लिए तू तख्त पर है, तेरे आगे खुदा सारा जहां है। तू ही इंसाफ दुनिया का करेगा, सच्चाई से मसीहा काम लेगा। तू ही इंसाफ दुनिया का करेगा, सच्चाई से मसीहा काम लेगा। सभी को में तेरे आगे हाजिर, खुदावंद रास्ते से तू बना है। सभी को में तेरे आगे हाजिर, खुदावंद रास्ते से तू भरा है। हमेशा तक रहेगा तख्त तेरा खुदावंद तू, अबद तक बादशाह है। उठाते जुल्म जो दुख से भरे हैं, तू ऊंचा बुर्ज भी उनके लिए है। उठाते जुल्म जो दुख से भरे हैं, तू ऊंचा बुर्ज भी उनके लिए है। दिलो जान से जो लेते नाम तेरा, मुसीबत में तो उनका आसरा है। दिलो जान से जो लेते नाम तेरा, मुसीबत में तो उनका आसरा है। हमेशा तक रहेगा तख्त तेरा, खुदावंद तू अबद तक बादशाह है। तुझे जो ढूंढते तालिब तेरे हैं, कभी भी उनको तू भूला नहीं है। तुझे जो ढूंढते तालिब तेरे हैं, कभी भी उनको तू भूला नहीं है। दिलो जान से करो तारीफ सारे, वही सैलून में जिंदा खुदा है। दिलो जान से करो तारीफ सारे, वही सैलून में जिंदा खुदा है। हमेशा तक रहेगा तख्त तेरा, खुदावंद तू अबद तक बादशाह है। अदालत के लिए तू तख्त पर है, तेरे आगे खुदा सारा जहां है। आमीन। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं और हमारे साथ सिस्टर नुसरत है, मैं उनसे कहूंगी कि वो दुआ करें, फिर उसके बाद हम कोर्स गाएंगे और उसके बाद भाई रशीद ने हमें ज्वाइन किया है, वो खुदा उनके कलाम की खिदमत करेंगे। तो सिस्टर नुसरत जो है वो दुआ करें। खुदा में आप सबकी सलामती हो। आपकी भी सलामती हो।
We say, Baruch atah Adonai Eloheinu Melech Kadosh, 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 Kadosh Adonai Eloheinu Chavanish Bishim Lord. Blessed are you, Lord our God, King of the universe, creator of heaven and earth, Heavenly Father, in the powerful name of Lord Jesus Christ. Thank you for your holy presence here, Lord, and we worship and glorify your name, Lord. We continue to glorify and worship your name, Lord. No matter how much we give you thanks and praise, Father, it's not enough, Father. We continue to ask that to be present here, take a charge of this church, and everything goes smooth and effective, Lord. And Father, we are gathered here in the Spirit, Lord, and we are your children. Your church is present here, Lord. The church is asking, Lord, you pour your Spirit onto each of us, Lord, and your Holy Spirit be with us, Lord. And Father, many are who are not feeling well today, stiffness or pains or anything or any cause or any physical or emotional distress, we rebuke and renounce in the mighty name of Lord Jesus Christ. And we burn and trample over and rebuke and renounce, and we ask that be gone in the mighty name of Lord Jesus Christ, and let everybody fill with your grace and your Spirit be with us, Lord. And Father, thank you for this wonderful moment once again, this privilege that we have in the mighty name of Lord Jesus Christ. We can approach your throne of grace every time, 7 day, 24 hour. There's no limitations that you made it available through Lord Jesus Christ, Father. We give you all the honors and glories, and Father, that you are so loving, kind. Your love is so greater in our life because you cannot stay away from children, Lord, and we cannot stay away from you. Our life and our everything evolve around you, Lord Jesus Christ. We worship and give you all the thanks and the praise. And once again, Father, we are about to hear your message, about to hear your word, oh Lord, that you are going to speak to us through your servant, Lord. We cover your servant, and we cover all of us in your blood, oh Lord Jesus Christ, all our family members. And we're asking, Father, that you pour your Spirit onto all of us, Lord, and your anointing be onto all of us, Lord, and especially onto your servant. You pour your Spirit onto your servant, Lord, and you pour your Spirit, Holy Spirit, come and speak through him, O Lord Jesus Christ. Whatever is the heart of the Father that you reveal unto your servant, Lord, touch your servant and be with him, Lord, and open his mind and brains and mouth, and give him wisdom and knowledge in the word he is about to speak, Lord. And you are going to talk to your children, your people, your church, Lord, and we may bless from your speaking your word through your servants, Lord. And we bring a prosperity 100% in our life, Lord. And because your word, your light, your word is for our life and life directions and for our well-being, Lord, we can apply in our life, and we should not be separate from you. And come, and Father, take a charge once again. And your holy presence is already there here, Lord. And we're asking, Father, that all the praise and petition we have brought it throne of grace in the mighty name of Lord Jesus Christ will be accepted for your kingdom's sake, for glorious name's sake. Amen. आमीन आमीन। हम खुदा उनके कलाम के लिए अपने आप को तैयार करेंगे और हम सब दुआ में ठहरेंगे। खुदा उनके कलाम, खुदा उनसे आज कलाम मांगेंगे। हमारे साथ भाई रशीद हैं, वो कलाम की खिदमत करेंगे आज। तो हम उससे पहले हम एक कोर्स गाते हैं, तो फिर हम कलाम की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं कोर्स गाती हूँ, फिर हम सिस्टर मारिया से कहेंगे कि वो जो है, और बराए मेहरबानी अपने अपने कैमरे प्लीज आप ऑन कर लें। आप कर सकते हैं तो आप अपने अपने कैमरे ऑन करें ताकि हमें पता हो कि आप यहाँ पर मौजूद हैं। हम कोर्स गाएंगे। लश्करों के खुदा तू मुबारक है सदा, लश्करों के खुदा तू मुबारक है सदा, ये जमीन और आसमान, ये जमीन और आसमान करते हैं तेरी सना, ये जमीन और आसमान करते हैं तेरी तेरी सना।
लश्करों के खुदा तू मुबारक है कि जिसने दे दे दिया दिया अपना कुदूस तू तू मुबारक मुबारक है कि जिसने दे दिया अपना कुदूस आसमानों में हमेशा आसमानों में हमेशा करते हैं तेरी सना आसमानों में हमेशा लश्करों के खुदा आमीन। हम इसी तरह दुआया हालत में रहेंगे, हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करेंगे और हमारे साथ सिस्टर मारी और फ्रोबल है, मैं उनसे कहूंगी कि वो कोर्स गाएं और साथ साथ दुआ करें कलाम के लिए अपने आप को हम ताकि तैयार कर सकें, सबको कलाम के लिए तैयार करें। आप अपने अपने माइक ऑन कर सकते हैं, आप अपने कैमरे ऑन करें और फिर खुदावंद का खादिम हमारे साथ है पास्टर रशीद जॉन, वो खुदावंद के कलाम की खिदमत करेंगे। तो हम दुआ करेंगे, हम खुदावंद से कलाम मांगेंगे। आज खुदावंद से हम कहते हैं कि हमसे तू बोल, तू जिसने हमें इकट्ठा किया है। हम सब खुदावंद की हजूरी में इकट्ठे होंगे और मैं मारिया और रोबल से कहती हूँ कि वो कोर्स गाएं और हम सब जो है उनके साथ मिलकर जो है वो दुआ में हम ठहरेंगे। हालेलुया। तुझको मुझसे तुझको लब को तू खोल मुझसे तू बोल तेरी आवाज सुनने को बेताब हूँ 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 लब को तू खोल मुझसे तू बोल लब को तू खोल मुझसे तू बोल सहारा नहीं कोई तेरे सिवा संभालूंगा मैं ही तूने कहा सहारा नहीं कोई तेरे सिवा संभालूंगा मैं ही तूने कहा तेरे कदमों में आने को बेताब हूँ तेरे कदमों में आने को बेताब हूँ लब को तू खोल मुझसे तू बोल लब को तू खोल मुझसे तू बोल हाथ बढ़ा जलवा दिखा रूपा से भर दे खुदा हाथ बड़ा जलवा दिखा रूपाक से भर दे खुदा तेरे रूह से मैं भरने को बेताब हूँ तेरे रूह से मैं भरने को बेताब हूँ लब को तू खोल मुझसे तू बोल लब को तू खोल मुझसे तू बोल लब को तू खोल मुझसे तू बोल हालेलुया। लब को तू खोल मुझसे तू बोल। बेशक खुदावंद तू हमसे कलाम कर, बेशक तूने हमें खड़ा किया है, तू ही हमें दलेरी और जुर्रत भी दे खुदावंद, तू ही हमें अपनी सलीब को उठाने का और उन दुखों को खुदावंद हमें
सहने का खुदावन तो फजल बख्श खुदावन, जो हम तेरी राह पर चलते हुए हम बर्दाश्त करते हैं, हम उठाते हैं खुदावन, हम उन लान तान को खुदावन, उन सारी चीजों को खुदावन जो खुदावन हमारे रास्ते में रुकावट बनती है, हम यीशु मसीह के नाम में हम उनको दूर कर सके खुदावन। हमें दिलेरी और जुर्रत अता कर, हमें कुव्वत दे, हमें अपनी कुदरत से भर खुदावन, अपने कलाम को आज नाजिल कर। हम सब जो यहाँ पर हैं, हम सब मुत्फिक होकर खुदावन तुझसे कलाम मांगते हैं। खुदावन तो आज हमारे लिए खास अपने बंदा के वसीला से हमसे कलाम कर। खुदावन तो हमसे बात कर। तेरी आवाज हमें हौसला देती है, तेरी आवाज हमें तसल्ली देती है, तेरी आवाज हमें इत्मीनान बख्शती है खुदावन। खुदावन हमारी सारी बीमारियों को नेस्त करती है, हमारी सारी बीमारियों को दूर करती है खुदावन, और सारी मुश्किलात को दूर करती है खुदावन। अपनी आवाज को खुदावन हमें सुनने का फजल बख्श खुदावन, हम तेरी आवाज को सुने खुदावन। आज तो हमसे कलाम कर, अपने बंदा के वसीला से बोल, अपने बंदा के वसीला से हमसे कलाम कर। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू यहाँ पर मौजूद है। पाकरू हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, पाकरू हम तुझे वेलकम करते हैं। अब मैं भाई रशीद से कहूंगी कि वो आए और खुदा का कलाम, जो आज खुदा का कलाम उनको खुदा जो कलाम उनको दे वो हमसे करें, वो हमसे खुदा से कलाम लेकर वो हमसे बात करें और हमें बताएं कि हम हमारी रहनुमाई करें खुदा के कलाम से। हम खुदा की आवाज को सुनना चाहते हैं। भाई रशीद से मैं कहती हूँ कि वो आए, वो खुदा का कलाम पेश करें। प्रेज हालेलुया, हालेलुया, खुदा की तारीफ हो। आमीन। मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो, हालेलुया। आपकी भी सलामती हो। खुदा आप सबों को बड़ी बरकत दे। आए हम चंद मिनटों के लिए खुदा के पाक कलाम को मिलकर सीखेंगे। मेरे अजीज बहन भाइयों, खुदावन ने सबसे ज्यादा इज्जत और अजमत अपने कलाम को दी है। सो आए बड़े ध्यान के साथ खुदावंत के कलाम पर ध्यान करेंगे, क्योंकि जब हम खुदा के कलाम पर ध्यान करते हैं तो खुदा का कलाम हमारी जिंदगियों में कसरत से काम करता है। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों, जिस जमीन पर हम जिंदगी बसर करते हैं, ये जमीन लानती अबलीस के कब्जे में है। आज शाम, आज रात खुदावंद ने मुमकिन किया कि हम खुदा की आवाज के शिनवा होने वाले हों। सो आए कलाम मुकद्दस में से अपनी नसीहत और अपनी तरबियत के लिए सीखते हैं। पहला पतरस उसका 5वां बाब और उसकी 8वीं आयत मुकद्दसा को हम खुदा के पाक कलाम में से सीखेंगे। अगर कोई भी तलावत में रहनुमाई करना चाहता है तो वो कर सकता है, क्योंकि मेरे पास स्लाइड नहीं है। अगर कहेंगे तो मैं वैसे वर्बली जो है उसको रीड कर दूंगा। पहला पतरस उसका 5 बाब जी, उसकी 8वीं वर्स, 8 वर्स, उसमें यूं लिखा है, खुदा के कलाम में यूं लिखा है कि खुदा के कलाम में लिखा है कि तुम होशियार और बेदार रहो, तुम्हारा मुखालिफ अबलीस और बेदार हो, तुम्हारा मुखालिफ अबलीस गरजने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। गरजने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। खुदावंत के पाक कलाम को पढ़े, सुने, समझे और कबूल के जाने पर खुदावंत की खास बरकत हो। खुदावंत का शुक्र। मेरे अजीज बहन भाइयों, अभी मेरी प्यारी बहन ने खुदा के पाक कलाम में से पढ़ा और हम सबों ने सुना, तुम होशियार और बेदार रहो, तुम्हारा मुखालिफ यानी कि लानती अबलीस गरजने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है। वो ऐसी जिंदगियों को ढूंढता है, वो ऐसे लोगों को ढूंढता है जो खुदा से दूर हैं। वो ऐसे लोगों को अपनी पनाहगाह बनाता है जिनकी वाकफियत खुदावंद यीशु अल मसीह से नहीं है। इसीलिए खुदा का बंदा पतरस रसूल इस बात पर
जो है वो जोर देता है कि तुम होशियार और बेदार रहो, तुम्हारा मुखालिफ अबलीस गरजने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको वो फाड़ खाए। मेरे अजीज बहन भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो शेर बब्बर नहीं है, क्योंकि कलाम मुकद्दस इस बात के बारे में बयान करता है कि अगर तुम अबलीस का मुकाबला करोगे तो वो तुमसे डर कर भाग जाएगा। आज जरूरत इस बात की है कि हम इस लानती शरीर से, इस अबलीस से जो है वो मुकाबला करें। जब हम पुराने ऐदनामा का मुताला करते हैं तो मेरे अजीज बहन भाइयों, जब दुनिया के अंदर बदी बढ़ गई, जब दुनिया के अंदर गुनाह बढ़ गया, जब दुनिया के अंदर मकारी बढ़ गई, जब दुनिया के अंदर मोहब्बत खत्म हो गई, तो खुदा ने जमीन पर निगाह की। जब खुदा ने जमीन पर निगाह की तो खुदा को जमीन पर कोई रास्तबाज नजर ना आया सिवाय एक के, मुकद्दस नूह के। और खुदा ने मुकद्दस नूह से कहा कि तूने मेरे लिए कश्ती बनानी है, क्योंकि इस लानती अबलीस ने, ये जो गरजने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है, पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। और वहां पर लोग खुदा की बंदगी, खुदा की इबादत और खुदा की प्रस्तिश नहीं करते थे। अब खुदा ने एक मिशन जो है वो अपने बंदा को दिया, मुकद्दस नूह को दिया, कि तूने मेरे लिए कश्ती बनानी है। और अब वो बुजुर्गी के अयाम में जो है वो लोगों के पास भी जाता, वो मुनादी भी करता, और जो खुदावन ने उससे काम दिया था, जो आवाज खुदावन ने उसके कानों में दी थी, जो कलाम खुदा ने उसे दिया था, वो उस कलाम के शिनवा हो गया। और उसने, जो खुदा ने उससे बात की, उसने कलाम मुकद्दस के मुताबिक होशियार और वो बेदार हुआ, और उसने खुदावंद के लिए इस कश्ती को बनाना शुरू किया। अब उस वक्त मेरे अजीज बहन भाइयों, बताना चाहता हूं कि वो कोई जदीद दौर नहीं था, लेकिन वो होशियार और बेदार हो गया। जब खुदा ने उससे कलाम किया तो मुकद्दस नूह जो है वो होशियार और बेदार हो गया, उसने परवाह नहीं की। हालांकि उस वक्त बहुत सारी मुश्किलात खुदा के बंदा को पेश आई होंगी, यकीनन, क्योंकि उस वक्त ना तो कोई आरे थे, ना कोई बड़े बड़े कील थे, ना कुछ ऐसी और चीजें जो है वो उसे दस्तयाब थी। लेकिन उसने खुदा के लिए जो है वो उस कश्ती को बनाना शुरू कर दिया, जो उसके लिए एक बड़ा ही मुश्किल काम था। क्योंकि जिस दौर में मैं और आप रहते हैं, इस दौर में सारी चीजें जो है वो अवेलेबल है, लेकिन उस वक्त ये सारी चीजें बड़ी मुश्किल थी। दरख्त को काटने के लिए उसे बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा होगा, उसको जोड़ने के लिए, उसको कट लगाने के लिए। जरा गौर करें, हम बस इतने ही कहते हैं कि ठीक है जी उसने कश्ती बना ली, लेकिन उस कश्ती के पीछे जो उसने बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस किया, जो उसने इतनी सारी मुसीबतें बर्दाश्त की, ये एक लंबी कहानी है। लेकिन खुदा का बंदा जो है, मुकद्दस नूह जो है, वो होशियार और बेदार हो गया। लानती अबलीस ने जो है वो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ था। तो जब खुदा ने उससे कलाम किया तो वो खुदा के कलाम के शिनवा हो गया, और उसने खुदा की जुनी में जो है वो उस कश्ती को बनाना शुरू कर दिया। मेरे अजीज बहन भाइयों, जिस जमीन पर मैं और आप जिंदगी के दिन पूरे कर रहे हैं, ये दुनिया एक समंदर है, और हमारे घर इस समंदर में जो है वो छोटी छोटी कश्तियां हैं। अब हमारे इन घरों को जो है वो इस समंदर में तैरना चाहिए, लेकिन आज ज्यादातर घर जो है वो इस दुनिया के समंदर में डूब रहे हैं, क्योंकि उस अबलीस ने जो है वो गरजने वाला जो शेर बब्बर है, जो डरपोक है, उसने आज जमीन को अपने कब्जे में लिया। उसने जिंदगियों को, गिरानों को, खानदानों को कब्जे में लिया, जिस तरह उसने मुकद्दस नूह के दौर में जिंदगियों को जो है वो अपने कब्जे में रखा हुआ था, कैद में किया हुआ था। आज भी बहुत सारी जिंदगियां अबलीस की कैद में हैं। लेकिन देखें, जब खुदा का खादम मुकद्दस नूह होशियार और बेदार हो गया तो उसने खुदावंद के लिए कश्ती बनी, और वो साथ साथ मुनादी भी कर रहा है
کہ خدا جو ہے وہ آسمان سے بارش کو برسائے گا اور زمین کے سوتے پھوٹیں گے اور زمین اپنا پانی دے گی، اور 40 دن تک جو ہے وہ بارش ہوتی رہے گی۔ لوگوں نے کہا کہ لگتا ہے اس کا دماغ جو ہے وہ خراب ہو گیا ہے، شاید یہ بزرگ جو ہے وہ ہوش میں نہیں ہے، اتنی سخت گرمی ہے، اتنی سخت دھوپ ہے، اور یہ کہتا ہے کہ 40 دن تک بارش ہوگی، آسمان اپنا پانی دے گا، زمین اپنا پانی دے گا۔ یعنی کہ اس وقت بھی لوگ اتنے سخت دل تھے کہ وہ خدا کے کلام کے شنوا نہ ہوئے، اور جب وہ لوگ ہوشیار اور بیدار نہ ہوئے تو آپ دیکھ لیں کہ ان کا کیا انجام ہوا۔ اور جب وہ کشتی تیار ہو گئی تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ اپنی فیملی کے سمیت اس کشتی میں چلا گیا، اور پھر وہی کلام جو وہ انسانوں کے ساتھ کرتا تھا اس نے جانوروں کے ساتھ کیا، اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جوڑا جوڑا جو ہے وہ اس کشتی میں آ گئے۔ یعنی کہ انسان اتنا سخت ہو گیا کہ اس نے خدا کے کلام کو نہیں مانا، اور جانور اس کشتی میں جوڑے جوڑے جب وہ آ گئے کیونکہ وہ خدا کے کلام کے شنوا ہو گئے۔ اور آج بھی لوگ جو ہیں وہ کلام سنتے تو ہیں لیکن اس کلام پر عمل نہیں کرتے، اس کلام کو اپنے دل میں نہیں رکھتے، اور وہ آتا ہے اور چرا کر لے جاتا ہے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ چرانے والا آتا ہے اور وہ چرا کر لے، اور وہ کلام ہی ہے جس کو وہ چراتا ہے، لے جاتا ہے، تاکہ زندگیاں جو ہیں وہ بچ نہ پائیں۔ اور اس لعنتی نے مقدس روح کے دور میں بھی ایسا ہی کیا، جب خدا کا خادم لوگوں سے کلام کرتا تو وہ آتا اور کلام کو لے جاتا، چوری کرتا اور چوری کر کے لے جاتا۔ اور دیکھیں جب وہ سب کشتی میں سوار ہو گئے تو خدا نے کشتی کے دروازے کو بند کر دیا، پھر لوگوں نے آ کر اس کشتی کو جو ہے وہ بجانا شروع کر دیا، اس کے دروازے کو کھٹکھٹانا شروع کر دیا، لیکن خدا کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ جب خدا نے کھولا تھا اس وقت لوگ آ ہی نہیں رہے تھے، وہ بیچارہ شور کرتا رہا کہ آ جاؤ، وقت بہت کم ہے، یہ زندگی ختم ہو جائے گی، خدا دنیا کو تباہ اور برباد کر دے گا، لیکن کسی نے جو ہے اس وقت اس کی آواز کو نہ سنا۔ جب کشتی کا دروازہ کھلا رہا لیکن جیسے ہی دروازہ بند ہوا لوگوں نے اس کشتی کی طرف دوڑنا شروع کیا۔ جب آسمان سے پانی آیا، زمین نے اپنا پانی دیا، تو پھر لوگوں نے جو ہے وہ اس کشتی کی طرف بھاگنا شروع کیا۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، اسی طرح خداوند جب اپنے جلال کے ساتھ آئے گا تو بہت سارے لوگ خدا کے کلام کی طرف بھاگیں گے لیکن خدا کا کلام انہیں نہیں ملے گا۔ اگر خدا کا بندہ مقدس نوح ہوشیار اور بیدار نہ ہوتا تو وہ اپنے گھرانے کو نہیں بچا سکتا تھا۔ اگر ہم اس کی زمینی خدمت کے بارے میں دیکھیں تو 120 سال مقدس نوح جو ہے وہ خدمت کی، لیکن وہ 120 سال میں صرف 8 زندگیوں کو بچا سکا۔ لیکن آج میری اور آپ کی اتنی زندگی بھی نہیں ہے، ہماری خدمت کے کتنے سال ہوں گے؟ 20 سال، 30 سال، زیادہ سے زیادہ 30 سال کی خدمت، اس کے بعد زندگی کی کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن دیکھیں کہ کس قدر مشکل ہوا کہ وہ 120 سالوں میں صرف 8 جانیں بچا سکے، صرف وہ بھی اپنے خاندان کی۔ لیکن آج میرا اور آپ کا بچنا کتنا ہی مشکل ہے، اس لیے کلام مقدس میں کہا کہ تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کون سی زندگی خدا کے کلام سے خالی ہے، کون سی زندگی پرستش سے خالی ہے، وہ آتا ہے اور پھر اس زندگی پر قبضہ کر لیتا ہے۔ اور دیکھیں یہاں پر 120 سال کی منادی میں 120 سال کی خدمت میں صرف 8 جانیں، 8 لوگ جو ہیں وہ بچائے گئے۔ اگر خدا کا بندہ مقدس نوح ہوشیار اور بیدار نہ ہوتا تو وہ زندگیاں ہرگز نہ بچتی، وہ زندگیاں بچا نہ پاتا، کیونکہ وہ خدا کے کلام کے شنوا ہو گیا اور اس نے خدا کے کلام کو مان لیا۔ لیکن آج ہم بھی کوئی 10 سال سے، کوئی 20 سال سے، کوئی 30 سال سے، کوئی 40 سال سے خدا کے کلام کو سنتا ہے، لیکن ہم خدا کے کلام کے شنوا نہیں ہوتے، ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سے نکال دیتے ہیں۔ اور پھر اکثر میں نے دیکھا کہ جب میں کہیں سرمن آتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ ہاں جی کون سی جو ہے وہ آیت مقدسہ لی گئی تھی آج سرمن کے لیے، تو اکثر لوگوں کا یہ جواب ہوتا ہے کہ پادری صاحب بڑی اچھی خدا کے کلام کی ورس تھی، بڑا اچھا کلام تھا۔ تو میں ان سے ایک بات کہتا ہوں کہ دیکھیں خدا کے کلام پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک ہے ہی اچھا، ہے ہی برکت والا، لیکن جو کلام کیا گیا وہ لوگوں کو یاد ہی نہیں رہتا،
क्योंकि वो अबलीस आता है और चुरा कर ले जाता है। अगर मुकद्दस नूह खुदा के कलाम को अपने दिल में ना रखता, अगर वो खुदा के कलाम की शिनवा ना होता, तो वो 8 जानों को नहीं बचा सकता था, उसका घराना नहीं बच सकता था। तो मेरे अजीज बहन भाइयों, आज जरूरत इस बात की है कि हमें खुदा के कलाम के शिनवा होना है। और जब हम देखते हैं, खुदा ने जब यूना से कलाम किया तो खुदा ने उससे कहा कि तू ऐसा कर, नैनवा शहर को जा। खुदा ने यूना से कलाम किया कि तूने नैनवा शहर को जाना है। जब हम यूना की किताब उसका पहला बाब उसको स्टडी करते हैं तो उसमें ये सारी स्टोरी आपको मिलेगी। खुदा ने उससे कहा कि तू नैनवा शहर को जा और वहां जाकर मुनादी कर, क्योंकि वहां पर भी लोगों की बदी बुराई जो है वो आसमान के खुदा तक पहुंच गई है। और उन्हें जाकर ये मैसेज दे, मेरा कलाम उनके साथ कर कि खुदा 40 दिनों में नैनवा शहर को तबाह और बर्बाद कर देगा। लेकिन मेरे अजीज बहन भाइयों, खुदा ने यूना से कलाम किया कि तूने नैनवा को जाना है, लेकिन यूना जो है वो तरसीस को भागा, अपने पैसे खर्च कर गए, वो तरसीस को भागा। फिर क्या हुआ कि जिस जहाज में वो सवार हुआ, उसने उस जहाज को जो है वो तूफानों में फंसा दिया। जिस जहाज में वो सवार था, समंदर के अंदर एक बहुत बड़ा तूफान आ गया। अब उसके साथ और भी बहुत सारे लोग जो है वो उस तूफान में फंस गए। अब बेचारों ने जो है वो अपना जितना भी अनाज था, जितना भी वो उस जहाज के अंदर उनके पास अनाज था, खुराक थी, वो सब बेचारों ने जो है वो समंदर में फेंक दिया। अब सब ने जो है वो अपने अपने आकाओं को जो है वो बुलाना शुरू कर दिया, पूजना शुरू कर दिया। किसी ने बुतों को पूजना शुरू कर दिया, किसी ने सूरज को, किसी ने चांद को, जिस जिसकी वो सताइश, जिस जिसकी वो मानते थे, सब ने जो है वो पूजना शुरू कर दिया। लेकिन यूना जो है ये बड़े आराम के साथ जो है वो सो रहा होता है। नाफरमानी खुदा की और ये जाकर बड़े मजे के साथ सो गए। मेरे अजीज बहन भाइयों, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये दुनिया जो है ये एक समंदर है और हमारे घर जो है वो छोटी छोटी कश्ती हैं, और इस समंदर में जो है वो हमारे घरों को तैरना चाहिए। लेकिन एक यूना की वजह से उसने पूरे जहाज को जो है वो तूफानों में फंसा दिया। और आज भी हमारे घरों के अंदर, गिरानों के अंदर, खानदानों के अंदर कोई एक ऐसा शख्स है, चाहे वो बीवी हो, शोहर हो, बेटी हो, बेटा हो, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, उसकी वजह से पूरा घर जो है वो तूफानों में फंस जाता है। और आज पूरे पूरे खानदान परेशानियों के अंदर हैं, मुसीबतों के अंदर हैं, दुखों के अंदर हैं, परेशानियों के अंदर हैं, क्योंकि वो होशियार और बेदार नहीं रहते। जब खुदा ने यूना से कलाम किया तो यूना को चाहिए था कि वो होशियार और बेदार हो जाता। वो होशियार और बेदार ना रहा और उसने अपने साथ बहुत सारी जिंदगियों को जो है वो तूफानों में फंसा दिया। और आज भी जब हम होशियार और बेदार नहीं रहते, जब हम खुदा के कलाम के शिनवा नहीं होते, तो हम अपने साथ बहुत सारी जिंदगियों को जो है वो परेशानी में मुब्तला कर देते हैं, क्योंकि चराने वाला आता है, चरा कर ले जाता है। जब यूना होशियार और बेदार ना रहा तो उसने पूरे जहाज को जो है वो तूफानों में फंसा दिया, परेशानी में फंसा दिया। लेकिन जब उसे जाकर जगाया गया तो उसने इस बात का इकरार किया, पढ़ लीजिएगा, कि मैं खुदा की हजूरी से भागा हुआ हूं, मैं खुदा की हजूरी से भागा हुआ हूं। और आज भी मेरे अजीज बहन भाइयों, हमारे बहुत सारे ऐसे बेटे बेटियां, बुजुर्ग, नौजवान हैं, यहां तक कि खिदमत गुजार मैंने देखे हैं जो खुदावंद की हजूरी से भाग जाते हैं। और जब हम खुदावंद की हजूरी से भागते हैं तो फिर हमारे घर, हमारे खानदान, हमारे बच्चे परेशानियों में फंस जाते हैं। लेकिन जब यूना ने इकरार किया कि मैं खुदा की हजूरी से भागा हूं, जब ये होशियार और बेदार ना रहा तो ये तूफानों में फंस गया।
आज लानती इब्लीस यही चाहता है कि हम तूफानों में फंसे रहे, हम परेशानियों में गिरे रहे, हम मुसीबतों में, दुखों में, तकलीफों में फंसे रहे, क्योंकि उसका काम यही है। और एक और हम कलाम मुक़द्दस में से देखें शमसून के बारे में। शमसून जो बहुत बड़ा सूरमा था, जो एक एक वक्त में सिपाहियों को, उनकी गर्दनों को तोड़ देता था, एक एक वक्त में हजार हजार सिपाहियों का मुकाबला करता था और उन्हें नेस्तो नबूद कर देता था। वो शेरों के मुंह चीर देता था, फाड़ देता था उनके मुंह। इस कदर खुदा ने जो है वो अपनी कुव्वत से भरा हुआ था। लेकिन दलैला उसके पीछे लग गई। वो दलैला उसके पीछे लग गई कि बता 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 तेरी कुव्वत का राज क्या है, बता तेरी कुव्वत का राज क्या है। और यहां पर देखें, जब वो लानती इब्लीस दलैला की सूरत में उसके पीछे लगा, वो औरत के रूप में उसके पीछे लगा, तो उसने उसका पीछा नहीं छोड़ा। एक दिन उसने आकर उसको अपने जो अपनी ताकत का राज है वो उसे बता दे। उसने कहा कि मेरी ताकत का राज जो है वो मेरे बालों में है। एक दिन वो सोया हुआ था, दलैला ने उसके बालों को लिया और कैंची लिया और उसे काट दिया। और जब उसके बाल काटे गए, जब शमसून होशियार और बेदार ना रहा, तो फिर वही दलैला आती, कहते कि उठ, फलस्ती आते हैं। लेकिन जब उठता है अपने आप को जो जोड़ता है, लेकिन उसकी ताकत उससे कट चुकी थी। कलाम मुक़द्दस में क्या कि खुदा शमसून से जुदा हो गया। जब खुदा जुदा हुआ तो फिर वो फलस्तीनियों की कैद में चला गया, फलस्तीनियों की कैद में चला गया। उसकी आंखों को जो है वो निकाल दिया गया। जब वो होशियार और बेदार ना रहा, हालांकि चाहिए तो ये था कि उसको होशियार और बेदार रहना चाहिए, क्योंकि उसने अपना राज बता दिया था कि उसकी कुव्वत का राज क्या है। आज भी हम जितने भी लोग हैं, जितने भी खिदमत गुजार हैं, हमें होशियार और बेदार रहने की जरूरत है, क्योंकि हमारे पीछे जो है वो लानती इब्लीस हर वक्त लगा रहता है कि किसी ना किसी तरह से वो खुदा के लोगों को गिराए। और उसके पीछे एक बहुत बड़ा टारगेट होता है। वो खादमों के पीछे क्यों लगता है? क्योंकि खादमों के पीछे कलीसियाएं होती हैं, और इसीलिए वो खादम को टारगेट करता है कि अगर मैं इसे टारगेट करूंगा तो पूरी कलीसिया जो है वो मेरे पीछे आएगी। सो इसीलिए जब शमसून होशियार और बेदार ना रहा, तो फिर उसे चक्की को भी पीसना पड़ा, उसकी आंखों को भी निकाल दिया गया। और आज भी जब हम होशियार और बेदार नहीं रहते, तो हमारी रूहानियत जो है वो खत्म हो जाती है, हमारा रूहानीपन जो है वो हमारी जिंदगी से खत्म हो जाता है। हम होशियार और बेदार नहीं रहते तो फिर हम मुसीबतों में, परेशानियों में, दुखों में, मुसीबतों में चले जाते हैं। तुम होशियार और बेदार रहो। हमें हर वक्त होशियार और बेदार रहने की जरूरत है। शमसून होशियार और बेदार ना रहा, और मुखालिफ ने आकर उसे पकड़ लिया, मुखालिफ ने आकर उसकी आंखों को निकलवा दिया, मुखालिफ ने आकर उसको जो है वो चक्की पीसने के लिए जो है वो पकड़ लिया, और वो चक्की पीसता रहा। और आज भी कितने सारे ऐसे लोग हैं जो लानती इब्लीस के शिकंजे में फंसे हुए हैं, और इब्लीस ने उनकी रूहानी आंखों को बंद कर दिया है, और वो चक्की का पार्ट उनके गले में डाल दिया और वो बस चक्की पीसते रहते हैं, चक्की पीसते रहते हैं, पीसते रहते हैं, पीसते रहते हैं, क्योंकि वो होशियार और बेदार नहीं रहते। मेरे अजीज बहन भाइयों, जब खुदा ने मूसा को कौम बनी इस्राएल के लिए मुकर्रर किया, तो खुदा ने मूसा से कहा कि तूने मेरी कौम को जो है वो मिस्र की गुलामी से निकालना है। तो मेरे अजीज बहन भाइयों, वहां पर देखें कि मूसा जो है वो होशियार और बेदार हो गया। मूसा जो है वो खुदा की आवाज के शिनवा हो गया, और उसने जो है वो दिन रात इसी काम के लिए जो है वो मेहनत करना शुरू कर दी। उसने खुदा की कौम बनी इस्राएल को मिस्र की गुलामी से निकालने के लिए काम शुरू कर दिया। और देखें कि मूसा ने कौम बनी इस्राएल को मुल्क मिस्र की गुलामी से निकाला। कब निकाला? जब वो होशियार और बेदार हो गया। अगर वो होशियार और बेदार ना होता तो वो कौम बनी इस्राएल को कभी भी
मिस्र की गुलामी से ना निकालता। मेरे अजीज बहन भाइयों, आज जरूरत इस बात की है कि हम होशियार और बेदार हो जाएं। हम मुकद्दस नूह की तरह होशियार और बेदार हो जाएं। हम मूसा की तरह होशियार और बेदार हो जाएं। हम दाऊद की तरह होशियार और बेदार हो जाएं कि अपने लोगों को गुलामी से निकालें, लानती इब्लीस के शिकंजे से निकालें, इस लानती की, इस मुझे की तमाम चालों से अपने लोगों को बचाएं। ये जो गरजने वाले शेरे बब्बर की तरह ढूंढता है कि किसको फाड़ खाए, देखें ये इस कदर लानती है, जब ये किसी भी बहन बेटी के बदन में आता है तो उस बहन बेटी को होश ही नहीं रहता कि उसका दुपट्टा कहां पर है, उसकी कमीज कहां पर जा रही है। ये इस कदर लानती है। ये ना तो किसी की बहन को देखता है, ना किसी की बेटी को देखता है, ना किसी के बुजुर्ग को देखता है, ना किसी जवान को देखता है। ये जब भी किसी भी जिंदगी में आता है, उस जिंदगी को तबाह और बर्बाद कर छोड़ता है। उस जिंदगी को ये तबाह और बर्बाद कर देता है। लेकिन मेरे अजीज बहन भाइयों, जब मुकद्दस नूह होशियार और बेदार हो गया, उसने अपने खानदान को बचा लिया। जब मूसा होशियार और बेदार हो गया, उसने कौम बनी इस्राएल को मुल्क मिस्र की गुलामी से निकाल लिया। अब देखें कि जब यूना होशियार और बेदार ना रहा, उसने अपने साथ बहुत सारे लोगों को जो है वो मुसीबत में फंसा दिया। बहुत सारे लोगों को उसने दुखों में फंसा दिया, तूफानों में फंसा दिया। और आज भी बहुत सारी जिंदगियां इन तूफानों में फंसी हुई हैं। और जब शमसून होशियार और बेदार ना रहा तो लानती इब्लीस ने उसे कैद कर दिया। और आज भी बहुत सारी जिंदगियां इस लानती इब्लीस की कैद में हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि अगर तुम उसका मुकाबला करोगे तो वो तुमसे डर कर भाग जाएगा। आज जरूरत इस बात की है, जिस तरह मुकद्दस नूह ने, मुकद्दस मूसा ने उसका मुकाबला किया तो उसने अपनी कौमों को बचा लिया। तो आज मेरे अजीज बहन भाइयों, जरूरत इस बात की है कि हम भी, जो हमारे पास कलीसियाएं हैं, जो लोग हैं जो खुदा के कलाम के शिनवा होते हैं, जरूरत इस बात की है कि हमें उन्हें इस लानती इब्लीस के शिकंजे से बचाना है। क्योंकि इसका काम है जिंदगियों को तबाह और बर्बाद करना, लेकिन यीशु मसीह का काम है जिंदगियों को बहाल करना, जिंदगियों को आजाद करना। सो आज जरूरत इस बात की है कि हम होशियार और बेदार हो जाएं, और होशियारी के साथ, बेदारी के साथ खुदावंद की खिदमत में लगे रहें। ऐसा ना हो कि हम शमसून की तरह सो जाएं, ऐसा ना हो कि हम यूना की तरह सो जाएं। और मेरे अजीजों, देखें कि जब वो सो गए तो फिर उन्होंने जो है वो अपने साथ भी जुल्म किया और दूसरे लोगों के साथ भी जुल्म किया। खुद तो वो मुसीबत में फंसे ही फंसे, लेकिन उन्होंने अपने साथ दूसरे लोगों को भी मुसीबतों में फंसा दिया, डाल दिया मुसीबतों में। आज जरूरत इस बात की है कि हम खुदा के कलाम के शिनवा हों और हम होशियार और बेदार हो जाएं। हम खुदावंद की हुजूरी में बढ़ते चले जाएं। हम इस लानती का मुकाबला करें, और जो खुदा ने भेड़ें आपको दी हैं, जो जिंदगियां खुदा ने आपको दी हैं, आप उन्हें इस मुजी से, इस लानती इब्लीस से दुश्नास करवाएं कि वो लानती इब्लीस आता है और वो जिंदगियों को तबाह और बर्बाद करता है। हालांकि वो खुद बड़ा डरपोक है। जब आप उसका मुकाबला करेंगे तो मेरे अजीज बहन भाइयों, वो आपसे डर कर भाग जाएगा। वो आपका कभी भी मुकाबला नहीं कर सकता। वो खुदा के लोगों का कभी भी मुकाबला नहीं कर सकता। जब आपके अंदर खुदा के कलाम की कुदरत होगी, जब आपकी वाकफियत कलाम मुकद्दस से होगी, तो वो लानती आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। खुदावंद मुझे और आपको आज के कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन। आमीन, आमीन। खुदा की शुक्रगुजारी हो। आमीन। भाई आप दुआ करें, आप खुद ही दुआ करें इस कलाम के लिए जो खुदा ने हमें बख्शा है।
प्रेज हालेलुया। आसमानी बाप तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ, तेरे नाम की तमजीद करता हूँ आसमानी खुदा, तेरे सारे फजल के लिए, तेरे सारे प्यार के लिए, तेरी दी हुई तमाम नेमतों, बरकतों, तमाम बख्शिशों के लिए तेरा शुक्र करता हूँ आसमानी खुदा। आज के कलाम मुकद्दस के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आसमानी खुदा कि तूने आसमानी खुदा अपने कलाम की कुदरत के लिए इस्तेमाल किया आसमानी खुदा। इसी तरह लायक तौर पर आसमानी खुदा मुझे अपनी खिदमत के लिए, अपने जलाल के लिए कसरत से खर्च और इस्तेमाल कर। यीशु मसीह के नाम से आसमानी खुदा, इल्मत का कलाम, निजात का कलाम, शिफा का कलाम यीशु मसीह के नाम से जारी सारी कर। यीशु मसीह के नाम से आसमानी खुदा, जितनी जिंदगियों ने आज तेरे कलाम मुकद्दस को सुना है, यीशु मसीह के नाम से आसमानी खुदा, ये कलाम उनकी जिंदगियों में 100 गुना फैलाने वाला हो और आज कलाम के वसीला से बहुत सारी जिंदगियों की नौबत तौबा तक पहुंचे। आसमानी खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ इन तमाम जिंदगियों के लिए जिन्होंने तेरे कलाम को सुना। आसमानी खुदा इन जिंदगियों को कसरत की बरकत से माला माल कर। यीशु मसीह के नाम से ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। 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 हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत कलाम के लिए। बेशक हम जब खुदावंद के रास्ते पर चलते हैं, जब हम खुदावंद की तरफ आते हैं तो इब्लीस हम पर हमला करता है। वो हर वक्त इस ताक में रहता है, वो हमें मुश्किलात में डालता है, वो हमें परेशानियों में डालता है, वो हमें माशी मसाइल में डालता है, वो हमें जिस्मानी तौर पर कमजोर करने की कोशिश करता है। वो हर तरह से हम पर हमलावर होता है ताकि हम बददिल हो जाएं, ताकि हम इस खिदमत को छोड़ दें, ताकि हम खुदा के रास्ते से पलट जाएं। लेकिन मेरे अजीजों, हमें ये बात याद रखनी है कि वापसी जो है हमारे लिए हलाकत है, वापसी जो है हमारे लिए हलाकत का बाइस है। जब हम रूहानी तौर पर आगे और ज्यादा दिलेरी और जुर्रत के साथ खड़े हो जाते हैं, हम मजबूती से खड़े हो जाते हैं, तो मेरे अजीजों हम बहुत सारी ना सिर्फ अपने आप को बल्कि अपने खानदानों को और दूसरी बहुत सारी रूहों को बचाने का सबब ठहरते हैं। हम अब बहुत सारी रूहों को बचा लेते हैं, लेकिन हमारे लिए वापसी जो है वो हमारे लिए और हमारे घरानों के लिए हलाकत होती है। इसलिए मैं ये खुदावंद की आवाज है कि हमें कोई भी मुश्किलात आए, हमें कोई भी परेशानियां आए, बीमारियां आए, हमें माशी मसाइल आए, हमें दुख आए, तकलीफें हमें मिले, लेकिन हमें दिलेरी और जुर्रत से हमें खड़ा होना है, हमें मजबूती से खड़ा होना है और हमें दुआ में ज्यादा से ज्यादा मजबूत होना है। जितना हमें इब्लीस जो है वो तंग करे, उतना ही हम ज्यादा दुआ में ठहरे, उतना ही ज्यादा हम खुदावंद के कलाम को पढ़ें और हम दिलेरी और जुर्रत पाएंगे और हम आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे। क्योंकि जैसे कि कलाम से हमने सीखा है और कलाम हमें सिखाता है कि वापसी जो है, जिसने भी वापसी का रास्ता इख्तियार किया उसको हलाकत का सामना करना पड़ा, वो तबाह और बर्बाद हो गए। लेकिन खुदावंद में ही सलामती है, खुदावंद की हुजूरी में ही सब कुछ है, इसलिए हमें आगे ही आगे बढ़ना है। तो मैं अब हमारे साथ भाई इरफान है, तो कल सिस्टर नौरीन ने हमें प्रेयर रिक्वेस्ट दी थी, वो बीमार हैं, हम उनके लिए दुआ करें। वो प्रेग्नेंट हैं, तो आप उनके लिए दुआ करें कि खुदावंद ने जब उनको इतने सालों के बाद बरकत दी है तो खुदावंद उनको सेहतमंद औलाद अता करे, खुदावंद उनको सेहत और तंदुरुस्ती बख्शे, कमजोरी, बदनी कमजोरी, हर किस्म की कमजोरी को दूर करे और खुदावंद उनको सेहतमंद औलाद, माँ और बच्चा दोनों सेहतमंद हों। हम इसके लिए दुआ में ठहरेंगे। और भाई रवि हमारे साथ हैं। भाई रवि जो है वो उन्होंने बताया था कि उनको काफी परेशानी है, उनकी मिसेस को, उनकी फैमिली को, उनको माशी मसाइल हैं का सामना है, तो हम उनके लिए भी दुआ करते हैं कि खुदावंद उनके लिए कसरत से पैसा मुहैया करे, खुदावंद उनको जो है इस मुश्किल से निकाल ले। क्योंकि जब हम खुदावंद के साथ चलते हैं तो इब्लीस हमें जो है वो हमें रोकने की कोशिश करता है, तरह तरह से हमें मुश्किलात देता है, लेकिन हमें आगे बढ़ना है। इसी तरह से और दूसरी प्रेयर रिक्वेस्ट हैं जो अगर कोई है तो आप हमें बताएं ताकि हम उनको खुदावंद की हुजूरी में रख सकें। भाई इरफान है हमारे साथ। भाई इरफान, आप हमें सुन रहे हैं? यस सिस्टर जी, मैं आपके साथ हूँ और मैं दुआ करूंगा इन तमाम दुआएं दरखास्तों के लिए। और मैं दरखास्त करूंगा आप सब लोगों से कि अगर हो सके तो आप भी माइक ऑन करें, हम सब मिलकर इन तमाम दुआएं दरखास्तों को खुदा के हजूर रखते हैं, खुदा से इल्तिजा करते हैं।
आसमानी बाप बुजुर्ग खुदावन मसीह यीशु के बेशक वसीला तू से जो हम तेरे यीशु पास मसीह आते के हैं नाम से खुदावन। प्रश्न तू जो तू जो हमारा खुदा है, तू जो तू जो हमारा खुदावन यस वफादार खुदा है, ओ Yes, खुदावन Jesus, तू yes. हमेशा Thank खुदावन you, अपनी Jesus. वफादारी Thank you. को हम मुझे पर बहुत याद सुंदर करता है। फजल बाप मैं अपनी बहन Thank you, को Lord. खुदावन Thank you, Lord. Thank you, Jesus. खसूस Thank you. खुदावन कलाम को सिस्टर पढ़ सकूं सिस्टर खुदा नसरीन को मुझे खुदावन जिनकी खुदावन दलेरी और और खुदावन जुर्रत यस आंधी से को कलाम खुदावन से ने भरो अपनी Thank you, खुदा Jesus. खुदा करते हैं खुदा इस वक्त मुश्किलों आए से खुदा भरो हम अपने मुश्किलों आप से को तेरी मुझसे हजूरी में लेकर आते हैं, अपने परेशानियों बच्चों से को, अपने निकाल खानदानों को, अपने भाइयों को, अपने भाइयों के बच्चों को, सबको आए यस खुदा हम मसीह के तेरी नाम हजूरी में लाते हैं, खुदा तेरे पापों में छुपाते हैं, खुदा तेरे हजूरी में आते हैं, खुदा हमें संभाल अपनी पनाह में रखा है, तेरी आशीष बात हमारे चुके दुश्मन के सारे मनसूबों को फेल करते हैं, यस खुदा हमारे मसीह चुके तो अपने हाथ से बाहर लगा दे, उनके सारे मनसूबे फेल होने कामयाब हो जाए। तो बड़ी खास दुआ करती है कि मैंने कहती है खुदा अपनी for बहन your spirit नसरीन on के to breathe लिए, on अपनी Father. बहन Pray नुसरत के लिए, for उनके our घराने के Noreen लिए that she's तसल्ली और pregnant, Father, तशफ़ी that not मांगता her हूँ। be इल्तिजा पति करता and हूँ बच्चा और खुदावंद, माँ बच्चा जिनका बच्चा फल जो बच्चा तेरी दोनों तरफ भी आए से खुदा अजर है, से तो बहन तंदुरुस्त नूरीन हो खुदा खुदावंद, उनकी जो कुंडली जिसको कमजोरी खुदावंद तूने जिस्मानी अपना कमजोरी संभाल रूहानी बढ़ा कमजोरी कर है खुदावंद यीशु के नाम से बरकत उसको बख्शी। फिजिकली और जो भी इसका इसमें फल है जो खुदा तेरी तरफ से वीकनेस कुछ के अजर वगैरह है, बच्चे को वीकनेस मैं और सदका वीकनेस तेरे और पाक यीशु अल्लाह के को नाम से मांग के हुक्म anxiety खुदा देता fear हूँ उसको कि depression दिलेरी और पेट का जुर्रत फल उसको they're all खुदावंद in a हस्बैंड mighty वो को name दे of कटने खुदा न Jesus चढ़े, Christ बच्चा और मां ये दोनों अपनी सेहत trample मंद for हो them खुदा I अपनी plead for their खुदा divine सूरत खुदा पर mighty name रखा प्लीज है, सारे उस your बच्चे पर को grace उसका your खुदा grace be with वक्त their खुदा life होकर and खुदावंद दोनों माँ हम बेटा सब माँ के बेटा दरमियान आए। दोनों और माँ बेटा खुदावंद और माँ बेटा हमारी है खुदा बहन तेरे उस आई खुदा तुझसे खूबसूरत फल को औलाद की सूरत में yes खाकर खुदा हम तेरी yes तमजीद Lord तेरी yes सताई करते हैं। yes यस ओ Jesus खुदा ऐसा ही yes हो जलाल खुदा yes ऐसा ही मसीह Lord हो yes खुदा I know ऐसा ही खुदावंद yes Lord हो yes भाई Lord रवि मसीह के के yes लिए, नाम Lord से उनकी yes अहलिया के Lord लिए, उनके फैमिली yeah, के गुलबान लिए के yes, Lord, घराना we के लिए rebuke हर all एक the we किस्म की rebuke उनकी all the परेशानी को, hardship, we rebuke हर all एक the किस्म के problems उनके and the माशी financial हालात को, problems be हर एक gone in the किस्म mighty की name of the Lord. उनकी You माली prepare the table यस परेशानियों before को, her, and यीशु you के ऐ will नाम बाप heap से heavens यीशु upon him. के You नाम send your से angels हुक्म before देता him, हूँ, Lord. उनकी He's and his सारी family, Lord, माशी and they will परेशानियां, provide him, Lord, सारी माली provide him, परेशानियां open और your कुछ heavens and shower शहरों में your बदल abundance, जाए। goodness, and ऐ बाप financial तेरा blessing upon him. There आसमान shall be no उनके लिए lack in खुल his जाए। house, ओ Lord. There should be खुदावंद sufficient इनके enough so they घराना can में survive, Lord. रोजगार की ओ बाहर इनके बिछाकर घराना में आए प्राप्ति खुदा हो, हम तेरी इनके बरकत आटे हो का अपना बर्तन आसमान खोल सेवा की कर इनको पत्नी आए खुदा हम वाला भरी सारी रहे, वो और हर फाइनेंशियल एक ब्लेसिंग किस्म अता की कराए धन खुदा हम दस्ती जिनको और जरूरत गुर्बत है खुदा नजायज हम से शैतान ने लाते उसको अपने रस्तों को यीशु बंद के किया लेकिन तू ही नाम उसके के रस्तों को घराना से यस बेशक खोलेगा निकल तू जाते ही हैं। उस पर ऐ आए खुदा बाप हम अपने मैं तेरे फजल बढ़ाएगा हजूर तेरी तेरी मिन्नत शफकत करता भलाई हूँ, का ताज भाई जिसके रवि साथ हो और तेरे अपनी पाक बहन की को मोहर खुदा तेरे जो तेरी ग्रेस उनके वर्शिप साथ हो करते एकदम हैं, तेरी और I स्ताइश found you करते, तेरी आदत करते हैं, be with him इनकी Lord खुदावंद Father you और bless his सिंह employer's लेना heart towards और him Lord we खुदावंद pray for अपना the blessing और for his डरा employer और बायां we pray for the हाथ इन पर problems बढ़ाना। we pray इस for तरह the तेरे कलाम problems में to be पाक gone में and लिखा है, be तेरे gone in दाने the हाथ mighty के name of नीचे the ऊपर Lord ठिकरा Jesus दिए Christ यस और Father तेरे is बाएं हाथ के नीचे आई ऊपर बरकत खुदा है हम ऊपर तेरे बरकत रखा है पापों और में बरकत इनके यीशु छुपा नाम दोनों से देते हैं हाथ यस खुदा तो खुदावंद उसने तेरे मौत बेटे बरसात देने रवि से पड़े पर मार पड़ बरकत कर है रहे माला हैं, माल कर दे ताकि ना पापों में रवि ऊपर छुपाते की हैं कि तरह फादर निकल तेरे जिसकी पाक बदौलत पूरी की तो खेती ग्रेस एंड करते कहीं पर इल्तिजा तेरी करता है ग्रेस बाप। हमेशा उनके मैं साथ अपने रहे खुदा वालिद कोई दुख साहब के लिए तकलीफ हमारे को जिनके छूने न पाए अभी तो दुआ कमर का करते पेन हैं स्टार्ट सारे हुआ बच्चे है, इस अपने मीटिंग के दौरान जानी भाई मैं फैमिली के ऐ ना बाप सिर्फ फैमिली के इस सुगी अपने बच्चों को अपने वालिद को ओ जो मेरा वो और सबके लिए जमीनी हमारी बाप है, अप्रूवल के लिए यीशु के नाम से हुक्म देते हैं शील इसके भाई इस सारे फैमिली दर्द के को, लिए एकदम इस भाई बॉडी जो को है थारा क्लियर सिस्टर करे फैमिली के और लिए इसे मेरी फैमिली के लिए इस फादर बीमारी की को, फैमिली के इस लिए एकदम कमर के दर्द को, की फैमिली के सारे लिए स्पाइनल व्यास भाई सेक्शन की को फैमिली के लिए यीशु एकदम के नाम सबके लिए से, तेरे सारे तेरी स्पाइन पेन बरकत को चाहती है तेरे यीशु के नाम से हुक्म देता है इस बदन को छोड़े। साले इल्तिजा एकदम करता है और आसमानी हमारे बाप, घरों में तू जितनी मौजूद भी रहा है बहन खुदा भाइयों जहाँ ने भी दवाइयाँ मार्गरेट के लिए दरख्वास्त आए की खुदा हैं, से दुआ करती खुदावंद हूँ मार्गरेट उसकी जिनको फैमिली के लिए खुदावंद
हमारी बहन भाइयों ने सुना और खुदा तेरे Yes, हजूर दुआ Lord. में Yes, ठहर Lord. गए हैं। Yes, Jesus अरे Christ, बाप Lord. अब मैं इन Lord. मित्रों या And I pray दरखास्तों को for नहीं peace, जानता, for इन joint pain be बहन gone. If you भाइयों के fall from the साथ name of चाहे मेरी Lord Jesus मुलाकात Christ, हुई, Father, I ओ pray लेकिन है for बाप holy तो presence जो in our दिलों homes, और Lord. गुर्दों Father, को your grace जानने fill us, वाला Lord. खुदा Your है। grace fill us, अरे Lord. बाप Blessed तू be your name, इनकी praise be your name, परिस्थितियों में glorify your गहरा name, Lord, काम that you कर। are the अरे mighty God, बाप you are the mighty इनकी Savior, you are the God. बीमारियां, इनके Mighty God, हर एक mighty किस्म की God. Yes, तंदुरुस्तियां, yes, Lord. इनकी Yes, Jesus, गुर्बतें, yes, Jesus, इनकी yes. नजास्तें, Yes, Lord. इनके Yes, Lord. आपके You और protect us, keep बरकतों us में, safe and report us, बहाली में, spirit onto us and शिफा breathe में onto और us, Lord. मुआजिजों में तब्दील हो जाएं। Oh, यीशु के नाम से यस ये यस Lord, यस दुनिया yes, यस तेरे Lord. यस नाम यस से हमारे घरों में पहचानी तेरी जाए। पाक इन your holy जिंदगियों में presence be in तेरा our नाम homes, इज्जत और Lord, where जलाल we go. पाता रहे। खुदा खुदा इनकी खुदा खुदावंद We bring the जिंदगियों में enemies in the खुदावंद courts of heaven. We हमेशा trample तुझे the enemy ऑनर and मिलता Satan रहे। in the mighty name of हमेशा Lord खुदावंद Jesus. इनके लबों से Courts of तेरी heaven, let मदाखताई him और तेरी gone from स्तुति the face of the बयान earth, होती Father, into रहे। powerful मैं name of भविष्य की Lord Jesus. निश्चित Praise के be your लिए name, worship और name, glorify name, Lord. खसूसी खुदावंद Thanक you, Father. अपनी Thank you, बहन Son. We resist you, सिस्टर devil. We नसरीन rebuke के you, लिए, devil. We सिस्टर rebuke you in the नुसरत mighty के name of लिए, Lord. Rebuke इनके you, Lord. कुटुंबों Rebuke के you, लिए, Satan. इनकी Leave us फैमिलीज के alone. लिए, इनके सारे Father, pray for us. रोजगार के लिए, Father, कारोबार के लिए, अहबाब Father, से तेरे जोर को
तेरे कई तेरी हाथ को रहमत मांगता इश्क हूँ, अप्लाई का अपना ताज कई हमेशा हाथ हमेशा को पाक हो खुदावंद पाक और इश्क स्थिति तुम्हारे सनों मिनिस्ट्री पर के बढ़ाए जहाँ रखना, पे तेरी इन रहमत इश्क बहनों अपनी ताज बेटियों पर हमेशा बढ़ाए हमेशा रखना। तुम्हारे और बाप, तेरे फरिश्ते हर वक्त ताकि जो तेरी तुम्हारे हाथ को खिदमत का पकड़े काम रखते बखूबी सर अंजाम दे रही है। इब्लीस जो गरजने वाले Oh, pray शेर की तरह दहाड़ता फिरता pray है, for all my वो employees, for इनका blessing be कन्ना upon पूछे, you, bless their तेरे hearts, words, पाखरू and की life. अच्छी बाढ़ हमेशा इन बहनों के गिर्द रहे। Thank you, Father. ताकि Thank you, खुदावंद Son. Yes, इनके thank you, खुम्बे, Son. Yes, इनके Lord. Yes, घराने Lord. Yes, खुदावंद Lord. Praise you, वो Lord. तुझ में Praise you, बढ़े, Lord. Praise you, Lord. वो Praise तुझ you, में Lord. तरक्की करे, Praise be you, वो Lord तुझ Jesus में Christ. Pray, परवान pray चढ़ते for रहे और my चाची हमेशा हिंदुस्तान. ये Pray for बहनें Shibukta खुदावंद तेरी and खेती उनके में सारे बच्चों इसी के लिए तरह तुझसे दुआ खुदावंद करते हैं to पूरे give them दिल, पूरी peace and जान, Father, पूरी she's gone for ताकत the next और उनके पूरी सारे बच्चों अक्ल के को साथ खुदा खुदावंद तेरी मखून खिदमत में करती छुपा रहे देती हूँ और खुदा to give बेशुमार them your भटकी peace हुई and comfort and भेड़ों your को strength तुझे be से upon them, छुपाने Lord, के लिए and Lord, गाने का सौंपन your deep peace बन भी सके। उनके साथ हो, इंतजार तू ही करते मेहरबान खुदावंद बाप है, तू ही तेरे रब मंसूर हमारी के लिए, जानों को अपने बचाने भाई के के लिए लिए, भाई तेरा शुक्र रशीद के अदा लिए, करते हैं इससे तेरे कलाम की खिदमत की, इनकी Lord, तेरी मिनिस्ट्री के लिए, बरकत इनकी इनकी खिदमत मिनिस्ट्री के के लिए, लिए pray for the इनके church फैमिली के building, लिए, Lord, इनके Father, pray चर्च के for लिए तेरी Father. खास Can बरकत you bless चाहता those हूँ people's और heart, खुदावंद bless those इल्तिजा people करता हूँ of इनको them. कसरत से अपने And जलाल you के लिए, ना सिर्फ जिस शहर बंदे ने कराची एकदम में प्लाट देना है बल्कि खुदा उस प्लाट पाकिस्तान को है और खुदा तो पूरी ये खुदा उस दुनिया में बंदे अपने को जलाल के लिए इस्तेमाल हमारे करना। साथ में इसी इस्तेमाल तरह कर तेरे पास्टर नाम के लिए फयाज वैसे भी के कोई लिए नहीं हमारे जो पास तो इतना तेरे रिसोर्स नहीं ज्यादा ममसू तेरी वहाँ के खिदमत फादर करते हैं, प्लाट बट ओ यू खुदावंद प्रोवाइड द फंक्शन इल्तिजा करता you हूँ will जिस provide जगह भी everything हो that's खैर perfect. सलामती से हो और खुदावंद Yes, Lord. और Yes, जिस Jesus. जगह भी Yes. हो उस Yes, जगह भी Jesus. खुदावंद Yes, तेरे नाम Lord. को जलाल All देते those रहे things. और खुदावंद उस जगह भी खुदावंद तेरे नाम से रूहों यीशु को के नाम छींकने से वाले तेरे ममसू दुआ हो। करते हैं तू ही उनके लिए, उनके बच्चों के लिए, उनकी बीवी के लिए, उनके चर्च के लिए तेरी आए खुदा कसरत की बरकत को मैं मांगता हूँ। Yes, उनकी Lord. हदूद Yes. को यदि इसकी हदूद की तरह अहबाब बढ़ाना। Yes, इसी Lord. तरह Yes, Lord. Yes, सदी Lord. के Pray for लिए, the इनके coach. चर्च के लिए, इनकी के नाम मिनिस्ट्री के से लिए, इनकी खिदमत के लिए, इनके कुंबा के लिए, चर्च के लिए तेरी खास बरकत मांगता हूँ। अपनी प्यारी बहन के लिए, सिस्टर मारिया के लिए, मारिया प्रोबल के लिए, इनकी फैमिली के लिए, इनके घराना के लिए Yes, Lord. Yes. कसरत की बरकत Yes, मांगता हूँ। Lord. Yes, इनकी Lord. बेटी जो Jesus. तेरी Yes, हमद Jesus. करती है, Thank you. तेरी Thank you, सना Jesus. करती है, Thank you, Jesus. तेरे Thank you. नाम को अपने लबों से जलाल Yes, देती Lord. है। Yes, इसके Jesus. इर्द खुदावंद इसका घराना बरकत पर बरकत Yes, आती करे। Jesus. ये Yes. बेटी में बढ़ती और तरक्की करती रहे Yes, और Jesus. खुदावंद Yes. इसी तरह खुदावंद Yes. तेरे नाम को इज्जत और जलाल देती रहे। इल्तिजा Yes, करता हूँ Lord. हमारे सारे Yes. ग्रुप को आए बाप Yes. तू Yes. इसी तरह संभाले रखना। इसी तरह खुदावंद हम Yes, सब Jesus. घटते चले जाएं और तू हम सबों बढ़ता में जाता है. Yes, बढ़ता चला Jesus. जाए Yes. और तेरा Yes, नाम Lord. हमेशा Yes. हमारे लबों से Yes, इज्जत और Jesus. जलाल पाता Thank रहे। you. Thank आए you, बाप Jesus. Thank you. आंदा बाकी हमारे उन सारे डेज में जो हमारे मिशनरीज हमें टीचिंग दे रहे हैं उन सबके भी साथ होना, उन सबकी भी सहायता करना और बिलखसूस खुदावंद बाकी जो दिन बचे हैं उन सारे टॉपिक्स के लिए उन सबको अपने उन खुदाम को कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना और होली सिटी मिनिस्ट्री के लिए फिर तेरे हजूर झुकता हूँ। ऐसे तो वसाइल मुहैया कर खुदावंद के होली सिटी मिनिस्ट्री बिलखसूस हमारी इन बहनों के तवज्जुह से पूरी दुनिया में तेरे कलाम की वो खुदावंद खिदमत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और तेरे कलाम की खुदावंद मुस्कात के लिए खुदावंद हर जगह खुदावंद जाकर तेरी खिदमत में सरगर्म रहे। इल्तिजा करते हैं कि तू हम सबको संभालना और बिलखसूस खुदा पाक लो तू जो हमारा अजीम रहनुमा और मददगार है उन सब की सहायता और रहनुमाई करना। ये सब कुछ मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन आमीन। अब हम सब खुदा की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिस हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर और हमें आजमाइश में पड़ने दे बल्कि में बुराई से बचा के बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा से तेरी है, आमीन। आमीन। जी कलाम में बरकत अदा करें भाई इरफान, कलाम में बरकत अदा करें। खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और खुदा पाक रूह की रफाकत और शराकत तमाम ईमानदारों के साथ बिलखसूस होली सिटी मिनिस्ट्रीज के साथ
और खुदा की कौम बनी इसराइल और शहरी यरूशलेम के साथ अब से लेकर अब्दुल्लाबाद हमेशा तक होती रहे। आमीन। आमीन आमीन। बाप बेटे और रूह रूह कुद्स की कुद्स सलामती का आप सब पर हो। आमीन। आप आमीन। पर भी आपके हो। साथ भी हो, आपके आमीन। साथ भी हो। आमीन आपके आमीन। साथ भी हो, आपके साथ भी हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। आमीन। आमीन।